Good morning, 7th class friends. Now, today we are starting our new chapter, that is the chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. इसका मतलब देखिए, वेदर आप जानते हैं कि किस टाइप का वेदर रहता है. क्लाइमेट एक बड़े स्तर की होती है कि किस टाइप की क्लाइमेट्स रहती है, जैसे कि हार्श क्लाइमेट्स एंड कोल्ड क्लाइमेट्स एंड ठीक है ना, वेदर और adaptations of animals to climate. It means how some animals can adapt to that particular climates. It means देखिए, some adaptations are in the cold regions, some adaptations are the hot regions, some are the temperate regions, tropical rainforest. देखिए, ये कुछ regions है जिनके अंदर animals they can survive, okay, but they are just adapt to particular environment. They are just adapting to themselves to particular environment. So what is the weather and elements of weather? We have to discuss here, okay. So we should start our chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. देखिए, you must have heard about the weather report on television, radio or read in the newspaper. देखिए, आप कई बार वेदर की जो रिपोर्ट है आप टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के अंदर रीड करते हैं. So when you are going outside in the rainy season, your parents ask you to about take umbrella. जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके देखिए रेनी सीजन के अंदर तो आपके पेरेंट्स आपको एक अम्ब्रेला वगैरह लेके जाने के लिए बोलते हैं. कई बार रेन कोट वगैरह भी साथ में लेके जाने के लिए कह सकता है, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ रेन. Okay, there is a chance of rain because that is the rainy season. That is the rainy season, and the weather is like that. It means some black clouds are just came out, and that is the showing that some darkness areas in comparison to other days. Okay, so we have to tell when you are going outside in the rainy season, your parents ask you to take umbrella even when the day is sunny and sky is clear or without clouds. और कई बार sky clear हो, ठीक है, और no उस दिन रेन नहीं भी हो रही हो, तब भी आपको कहा जा सकता है. देखिए, so if you are fond of watching cricket on the TV, you must have seen the experts discussing about the weather before the start of game. कई बार आप देखिए कोई भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स है, देखिए स्पोर्ट्स के अंदर जैसे एथलेटिक्स प्रोग्राम्स है, कुछ ओलंपिक वगैरह, ये इस टाइप से आप देखते हैं कि कुछ क्रिकेट कमेंट्री के दौरान और फुटबॉल के दौरान तो इस टाइप में आप देखते हैं कि दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वेदर रिपोर्ट्स. इट मींस ऑन द डे इफ देयर इज अ चांस ऑफ एनी रेन ऑन हार्श क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स, mild climates like that, okay, or dry or it means the dry and maybe the it means the warm climate like that. So these are the things which we have to seeing or generally it means hearing whether if any game is starting on that time, okay. Have you ever thought what is the weather exactly? How do people study weather? Who are responsible to give weather report? In this chapter you will study about the weather, their elements, climate and adaptations in animals to cope up with the change in the weather and climate to survive it. तो देखिए, आप इस चैप्टर के अंदर देखिए यही पढ़ने वाले कि कैसे देखिए एलिमेंट्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, ये सब जो है, या फिर कुछ एनिमल्स जो है इनसे अडेप्ट करते हैं इस टाइप के किसी भी टाइप के टेम्परेचर के अंदर, कोल्ड हो या चाहे हार्श तरीके किसी भी टाइप का, एंड हाउ दे टू सर्वाइव. तो देखिए कुछ वेदर रिपोर्ट लिखी हुई है. मैक्सिमम 35.7 डिग्री सेल्सियस, ओके, -1 एंड मिनिमम 25.1 डिग्री सेल्सियस. देखिए ये डे का टेम्परेचर की मैक्सिमम एक 35 के पास में जा सकता है और मिनिमम 25 के आसपास में जा सकता है. मून राइज इट मींस इवनिंग टाइम में थर्सडे 3.14 PM. मून सेट फ्राइडे इट मींस नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग 1. इट मींस 1:52 है AM. एंड सनसेट थर्सडे 7:23 इवनिंग के टाइम, और सनराइज फ्राइडे मतलब कि मॉर्निंग के अंदर 5:28. सो जनरली क्लाउडी स्काई विद स्पेल्स ऑफ रेन. क्लाउडी स्काई रहने वाला है. मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 36 और 26 जैसा, और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी. देखिए ह्यूमिडिटी मींस द वाटर परसेंटेज इन द एनवायरनमेंट, या आसपास के आपके एटमॉस्फेयर में हाउ मच वाटर परसेंटेज, वाटर वेपर परसेंटेज इज विल बी द मैक्सिमम वाज 81% एंड मिनिमम 51%. एंड कई बार देखिए एयर जो ब्लो स्पीड है, एयर ब्रीज जो स्पीड है, उनको भी यहाँ पर दिया हुआ था विंड के स्पीड के द्वारा. देखिए कि जो फ्लो ऑफ एयर का रेट है, ठीक है ना, वो कितना रहने वाला. नाउ वेदर, ऑल लिविंग बीइंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अराउंड देम. देखिए सभी जो लिविंग बींग्स है वो इन्फ्लुएंस रहते हैं किसके द्वारा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर अराउंड देम. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. द डे टू डे चेंज इन दिस कंडीशन मेक अप द वेदर. देखिए दिन ब दिन देखिए इनके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर. तो देखिए किस किस के अंदर चेंज आ रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. ओके, टेम्परेचर,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ठीक है ना, टेम्परेचर ओके एंड ह्यूमिडिटी, rainfall and wind speed. These are the factors which affect the any local area, okay, any area for their local climate or weather conditions. देखिए, so the temperature, humidity, wind and other atmospheric conditions are called the elements of weather. तो देखिए इन सबको हम क्या कहते हैं? Elements of weather. Elements of weather. किसी भी weather के देखिए regulations के लिए, controls के लिए ये सारे देखिए elements जो है वो responsible है हमारे पास। देखिए the weather of a place change day by day and week after week. Weather is a complex phenomenon that can vary over a short period. देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। कैसे रहता है? शॉर्ट पीरियड। कुछ एक मतलब देखिए डेज के लिए भी रह सकता है, वीक टू वीक चेंजेस हो जाते हैं, डे टू डे भी चेंज हो जाते हैं। देखिए कई बार A warm sunny day can be overtaken by a violent storm. एक बिल्कुल साफ क्लियर स्काई है, वार्म सनी डे है, बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से एक वायलेंट स्टॉर्म भी आ सकता है। इट मे बी टेकन ओनली अ मिनट टू वेनिश द हैवी रेन, और वो एक ही मिनट के अंदर कुछ हैवी रेन्स को भी लेके आ सकता है। इस टाइप का हैवी जो वायलेंट स्टॉर्म है। एंड रिटर्न ऑफ सनी वेदर, और बाद में कुछ टाइम के बाद में वापस जो है वो सनी जैसा, मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर डे जैसा, क्लियर सनी डे जैसा, मतलब कि आपके पास में वापस टेम्परेचर भी आ सकता है, वैसा वापस वेदर जो है आपके पास में रह सकता है। However, in some parts of the world, such as the tropic, the weather barely changes for a month at a time. कुछ एक जो पार्ट्स है वर्ल्ड के अंदर वेदर जो है बहुत मुश्किल से ही चेंज होते हैं कभी मंथ के अंदर। देयर इज ऑलवेज अ हॉट एंड हैवी रेनफॉल, वहाँ पे हमेशा गर्म जैसा मौसम और जो हैवी रेनफॉल है वो होता रहता है। Weather describes the conditions such as rain, wind and temperature that occur during a short period of time in a particular place. तो देखिए वेदर जो एक्चुअल में डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है? रेन, विंड एंड टेम्परेचर को। रेन देखिए ये रेन है, ठीक है, ये विंड है, और एक टेम्परेचर जो है, या फिर आप ह्यूमिडिटी भी इसके अंदर जो है शामिल कर सकते हो। किसी भी एरिया के अंदर इन सब के अंदर चेंजेस ही वेदर के अंदर चेंजेस जो है वो कहलाता है। मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। It means these are the factors. On behalf of that, we have to tell any local areas whether it's just changing or not. Okay. The scientists who measure and forecast the weather. It means देखिए जो भविष्यवाणी में मतलब पहले से ही प्रेडिक्शंस कर लेते हैं वेदर के बारे में कि किस टाइप का रहने वाला है, आज कोई तूफान आने वाला है, या इस टाइप का हैवी टेम्परेचर रहेगा, मतलब कि किस टाइप के हैवी रेनफॉल रहने वाला है, या किस टाइप से कुछ या क्लियर सनी डे रहने वाला है। ठीक है ना, these all are the predictions. Before that they are known as the forecast. The scientists who measures and the forecast weather are called meteorologists. इनको हम क्या कहते हैं? meteorologists. मतलब जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं, जो मौसम वगैरह जो हमारे पास आसपास में होता है मौसम मतलब वेदर है, उनको पहले से ही प्रेडिक्शंस जो है फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे देते हैं। They do this by studying clouds, wind and temperature and pressures of the earth atmosphere. ये इन सब का देखिए आप ज्योग्राफी के अंदर इस टाइप का देखते हैं कि क्लाउड्स, विंड एंड टेम्परेचर का और प्रेशर का, अर्थ का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, ठीक है, उनको देख के वो पता लगा लेते हैं कि किस टाइप का जो है आने वाले जो टाइम है उसके अंदर मतलब अभी जो है क्या चेंज हो रहा है, जो आने वाले के अंदर ये चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स देखिए आपने देखा भी होगा, कई बार बारिश होती है तो लिखा होता है कि हाँ यस वेरी वेरी हैवी रेनफॉल, इट मींस वेरी हैवी रेनफॉल, समटाइम हैवी रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड नो रेनफॉल। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस जिसके बारे में देखिए हम पहले से बता सकते हैं कि ये जो है इस कैटेगरी के अंदर आता है। कई बार देखिए इनके अंदर अलर्ट भी घोषित कर लिया जाता है, मतलब डिक्लेयर कर लिया जाता है। जैसे रेड अलर्ट है मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने वाला है, ऑरेंज है मतलब हैवी है बट आपको थोड़ा घर से कम ही बाहर निकलना है और आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकलना है। कई बार एक जो होता है मतलब कि ग्रीन टाइप का सिग्नल होता है इसके अंदर, जिसके अंदर आप आराम से हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, मतलब बाहर आ जा सकते हो आने वाले 24 आवर्स के लिए इस टाइप से, ठीक है। लेकिन आपने देखिए अक्सर जो है कुछ बर्फ गिरने वाले जो इलाके होते हैं, शिमला मनाली वगैरह इस टाइप से, या और भी ज़्यादा ले लेता, तो आपने इस टाइप में देखा होगा कि किस टाइप से हैवी स्नोफॉल वगैरह इनके अंदर पहले से ही डिक्लेयर कर लिया जाता है कि आने वाले 3-4 डेज जो है वो है। और आप वैसे भी देखिए न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते ही है कि
कई बार क्लाउड्स रहते हैं, किस टाइप की बारिश होने वाली है, किस टाइप का विंटर रहने वाला है, कितने दिन और इस टाइप का विंटर वगैरह जो है डेज रहने वाले हैं, और कितनी ज़्यादा हैवी जो है मतलब कि विंटर या कोल्ड या इस टाइप का चिल क्लाइमेट जो है वो रहने वाला है, या इनके अंदर कुछ बारिश की जैसी या रेनिंग जैसी तो कुछ प्रेडिक्शंस नहीं है। तो ये कुछ जो है प्रेडिक्शंस होते हैं जो मीटरोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। So if you see a weather report that is given in the newspaper, you will find the informations of temperature, humidity, rainfall and other atmospheric conditions. तो आप इनके अंदर आराम से जो है कुछ atmospheric conditions वगैरह देख सकते हो। These conditions constitute elements of weather because the variations cause weather changes. तो जैसे इनके अंदर variations आते हैं तो weathers के अंदर भी क्या आने होंगे, changes आएंगे। Here you will learn about temperature, humidity, rainfall and wind to understand. देखिए वही सारी चीजें हैं, temperature, humidity, rainfall and wind to understand the cause of weather change. तो देखिए ये सारे देखिए अपने अपने कैसे रोल जो है प्ले करते हैं in the changes of the weather of any area. देखिए first is temperature. The early morning are quite pleasant even in the summer. देखिए अर्ली मॉर्निंग जो बहुत प्लेजेंट होती है, आप जानते हैं देखिए इन समर भी, मतलब देखिए गर्मियों के दिनों में भी आपको सुबह सुबह बाहर निकलना ठीक ठाक लग सकता है। जैसे देखिए धूप बढ़ेगी फिर शायद आप पसंद ना करो। एज द डे एडवांस मतलब और डे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, देखिए 9, 10, 11, 12 होता जाएगा, इट बिकम्स अ वार्मर, और ये बिल्कुल गर्म जो है होता जाएगा। As the day, okay, the slanting sun rays of morning do not heat up the slanting यानी कि तो जो तिरछी सी जो रेखा है वो मतलब कि जो सन की लाइट है वो इतनी ज्यादा शायद हॉट नहीं करते, बट जैसे ये बिल्कुल वार्मर बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए वर्टिकल पोजीशंस के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे ओवरहेड द पोजीशन में रहेंगे, तो इनके द्वारा जो सन रेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो टेम्परेचर कैन इंक्रीज विद द पोजीशन ऑफ सन आल्सो। And do not and rays of morning do not heat up the ground and air as much that rays around noon. Beside it, take some time for the ground and air to become warm after the cool night. कई बार देखिए कूल नाइट के बाद में जो टेम्परेचर या आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा सा गर्म होने में, थोड़ा सा या वार्म होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। So the maximum temperature for any particular day is reached sometime in the afternoon. Afternoon मतलब it means after 12 o'clock. देखिए कई बार 12 बजे के बाद में दिन के, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा गर्मी जो है या आसपास का टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म जो है, वार्म क्लाइमेट जो है, ठीक है ना, हॉट क्लाइमेट जैसा वो नजर आने लग जाता है। सो एज द सन गोज डाउन द अर्थ रेडिएट्स हीट एंड एयर स्टार्ट्स बिकमिंग कूल, इट बिकम्स द कूलेस्ट सम टाइम अराउंड dawn व्हेन मिनिमम टेम्परेचर इज रीच्ड। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं, उनके हेल्प से जो है हम आराम से मतलब कौन से समय में मैक्सिमम किस दिन कितना ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, कितना मिनिमम रहने वाला है, तो इसके हिसाब से देखिए हम देख सकते हैं या कुछ प्लान कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो या बहुत ज्यादा गर्मी है तो अवॉइड करना है टू गो आउट टू द हाउस। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स के द्वारा हम ये आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसी भी डे के अंदर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला और कितना मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला। जैसे कि अभी शुरू में लिखा था कुछ 35 मैक्सिमम एंड 25 के समथिंग जो है वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है। नाउ द ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। किसी भी एयर के अंदर देखिए वाटर वेपर जो है वो कितनी प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। एट और हिंदी के अखबारों में देखिए आपने इसको आर्द्रता के रूप में या इस टाइप से पढ़ा होगा, ऊपर की तरफ लिखा होता है, ठीक है। At a particular temperature, air can hold a certain amount of water vapor. Relative humidity in the air is expressed as a percentage of maximum amount of water vapor. It can hold a particular temperature. Relative humidity is a measure with the help of hygrometer. तो देखिए हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको बताया जा सकता है, और एक्चुअल में ये है कि किसी भी एयर के अंदर हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर परसेंटेज इज प्रेजेंट, हाउ मच मैक्सिमम वाटर अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज प्रेजेंट, वही उसकी कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रेनफॉल, रेनफॉल इज कलेक्टेड इन अ रेन गेज। देखिए रेन गेज के अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है। Rain falling into the funnel trickles into a jar. At the end of the day, the jar is emptied into a measuring cylinder. तो उस जार को देखिए पूरे दिन के बाद में एक खाली जो है उसके अंदर एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसको डाला जाता है। दैट गिव्स द रीडिंग ऑफ डेज टोटल रेनफॉल, और वो उस दिन की जो टोटल रेनफॉल जो है आप देख सकते हैं कई बार 1 mm रेनफॉल, 10 mm रेनफॉल। ओके, तो इसी वजह से उसको बताया जाता है ताकि वो उसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वो बता देते कि वो कितना भरा हुआ, उसी के जो मतलब behalf of that we have to tell how much rainfall is already happened in any area.
Now the activity 7.1, that is the note down the values of maximum and minimum temperature. देखिए कुछ वैल्यूज दी हुई है किसी डेट्स की, जैसे 23/8, 24/8, मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए 34 पॉइंट इस टाइप से है, मिनिमम टेम्परेचर देखिए 25 पॉइंट इस टाइप से, मिनिमम ह्यूमिडिटी 59%, 59% मींस 59% ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी दैट इज द 93 and 100, and these humidity shows that the process or maybe the conditions of rainfall, because only the time of rainfall the humidity will increase, ठीक है ना। जब रेनफॉल होता है तभी जो ह्यूमिडिटी जो है हमारे आसपास में इंक्रीज रहती है। अदरवाइज देखिए वार्म क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट के अंदर, जब भी समर क्लाइमेट जो होता है उसके अंदर इतनी ज्यादा मतलब कि ह्यूमिडिटी जो है हमारे आसपास में नहीं आती है, ठीक है। Now next is the wind. The sun's heat produce winds. Wind speed is measured with the help of an instrument called anemometer. देखिए विंड की जो स्पीड है उसको हम जो है एनीमोमीटर के द्वारा भी हेल्प कर लेते हैं। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा हेल्प करते हैं। और एनीमोमीटर देखिए वो हमारे पास एक मेजरिंग यूनिट्स है जिसके द्वारा हम विंड की स्पीड, इट मींस व्हाट इज द स्पीड ऑफ विंड ऑन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द विंड स्पीड, ठीक है। और उसी को एनीमोमीटर के द्वारा। क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर। क्लाइमेट देखिए बिल्कुल वेदर की तरह नहीं होता। देखिए आपने वेदर देख लिया, इट मींस व्हाट इज द डे टेम्परेचर, व्हाट इज द नाइट टेम्परेचर, व्हाट इज द मैक्सिमम डे टेम्परेचर, देखिए जो मतलब कि सनराइज सनसेट का टाइमिंग क्या है, ठीक है ना, किस दिन ह्यूमिडिटी क्या रही, दिस ऑल आर द कंडीशंस वी हैव टू इंक्लूड इन द weather condition. We have to include in the weather condition in which we have to tell how much the maximum and minimum temperatures, humidities, rainfall and wind speeds. Now the climate is not the same as the weather. Weather can change within minutes. Climate describe a region weather conditions over a long period of time, about 25 years. Every region has its own climate. This depends upon the distance from the equator. देखिए हर एक रीजन का अपना एक ओन क्लाइमेट होता है और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस किससे, उस इक्वेटर से। A region closer to equator will get much heat and hence will be a competitively hot. देखिए जो इक्वेटर के होता है, देखिए आपने इस टाइप का कुछ ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, देखिए इस टाइप का होता है, ये इक्वेटर है, ओके, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आर्कटिक अंटार्कटिक आपने ये भी देखा होगा 0 डिग्री है, इस टाइप से 23.5 एंड 66 एंड 1/2 इस टाइप से है, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इस टाइप से देखा होगा। तो देखिए ये जो है आप जब भी देखते हैं तो आप कह सकते हो कि द डिस्टेंस अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है ना। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डिस्टेंस जो है इक्वेटर which is making equator, it means which is making it means sphere into the hemisphere, ठीक है ना। इक्वेटर ही वो थिंग्स है या लाइन है जिसके द्वारा ये जो पूरा स्फीयर है, ठीक है ना, जो अर्थ स्फीयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। So a region closer to the equator will get much heat. देखिए जो क्लोजर एरिया, देखिए ये सारा क्लोजर एरिया, ओके, these are the closer area of equator, so they are getting the too much hot. It means because the sun rays are not slanting, the sun rays are directly, it means the straight traveling, that's why they are having the too much hot places, and heat is produced, hence will be a comparatively hot. Landscape also influence climate. High mountain regions such as Himalayas are cooler than nearby. और कई बार देखिए कुछ जो हाई माउंटेन रेंजेस होती है, हाई माउंटेन रेंजेस जो इस टाइप से होती है, उनके अंदर जो है ऊपर वाले जो एरियाज वगैरह जो है, ठीक है ना, because they are having the too much height from the sea level, and that's why, okay, latitude, altitude you already seen in geography, so they are making that high mountain areas such as Himalayas जो है वो कूलर मतलब कोल्डर होते हैं in comparison to low lying it means the plain areas, okay. The ocean can prevent a coastal region from getting very hot or red. और ओशियन जो रीजन होता है वो अपने आसपास के एजेस को ना तो ज्यादा कोल्ड बनाने जाता है और ना ही ज्यादा हॉट, बिकॉज देखिए सी ब्रीज एंड लो लैंड ब्रीज, ठीक है ना, वो उसका एग्जांपल है। और वो उसके कारण से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण ना तो ज्यादा हॉट रहते हैं ना ही ज्यादा कोल्ड एरियाज रहते हैं। The weather reports are prepared by meteorological department of the government. They collect the data on temperature, humidity, wind, etc. and make a weather report. ठीक है, sun is the major factor responsible for the changes in the winter weather season. ठीक है,
सन इनके अंदर जो है वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजेस इन द वेदर रीजन, ठीक है ना, वेदर कंडीशन के अंदर चेंजेस करने के लिए। देखिए अब जो कुछ एक टेम्परेचर जो है श्रीनगर जम्मू एंड का दिया हुआ है, मीन टेम्परेचर मतलब डेली मिनिमम कितना है, डेली मैक्सिमम कितना है, मीन टोटल जो है रेनफॉल कितना रहने वाला है, ये पूरे देखिए होल ईयर का मतलब एनुअल पूरा डाटा है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू के अंदर किस टाइप का मतलब कि मौसम जो है वो रहता है और क्लाइमेट रहता है। फिर देखिए तिरुवनंतपुरम जो केरला के अंदर है उसका डेली मिनिमम कितना है, ठीक है, और डेली मैक्सिमम कितना है, तो आप देख सकते हैं देखिए माइनस में डेली मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और डेली मैक्सिमम देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है। कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है, ठीक है। और फिर देखिए आप मंथ के अकॉर्डिंग भी इनके देख सकते हो, तो देखिए क्या इसका कंक्लूजन है, ठीक है। टेबल्स above gives a detailed account of climatic conditions of Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. So from these tables, it is clear that the climate of Jammu Kashmir is cool and dry in comparison to Kerala. तो देखिए ये देखिए जो जम्मू कश्मीर या श्रीनगर की जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, कैसा है, कूल क्लाइमेट है इन कंपैरिजन टू केरला व्हिच हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। इसका जो है हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है किसके अंदर, केरला के अंदर, ठीक है। सो आप देखिए इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सी लेवल से हाई जो हाइट है वो भी देख सकते हैं, बिकॉज श्रीनगर इज टू मच हाई इन द प्लेन एरियाज ऑफ गैंगटॉक प्लेन्स or in the comparison to the sea level, and if we are telling the locations of Thiruvananthapuram in the Kerala, that is the just nearby the sea area, it means समझ में आ रहा है। देखिए जो ओशन है उसके बहुत ज्यादा नजदीक है और वो बहुत ज्यादा दूर है, इनकी जो डिस्टेंस और हाइट और डिस्टेंस देखिए बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। In Rajasthan the temperature is very high during the summer, but ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर गोज डाउन, ठीक है ना। देखिए राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट एरिया है बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई एरिया भी है, तो इनके अंदर समर्स के अंदर देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, पर ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर गोज डाउन। लेकिन विंटर्स के अंदर इनका टेम्परेचर बिल्कुल गोज डाउन, मतलब सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी और गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी रहने वाली है, ठीक है ना, बिकॉज द सैंडी सॉइल आर बहुत जल्दी, देखिए सैंडी सॉइल जो होती है बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है, तो जैसे इसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा देन इट विल बिकम अ हॉट, और जैसे इसको टेम्परेचर कूल्ड हो गया मतलब कम हो गया देन इट विल बी इजीली कूल डाउन। दिस रीजंस shows a lot of variation in the temperature. Rainfall is also a very poor in this region. तो रेनफॉल तो देखिए आप 25 सेंटीमीटर से भी बहुत कम है, अबाउट आसपास देखिए 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ तो सबसे ज्यादा जो है 500 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, और राजस्थान के अंदर जो है इस डेजर्ट एरिया के अंदर लेस देन 25 सेंटीमीटर वाले एरिया और 50 सेंटीमीटर से लेस देन वाले एरिया के अंदर ही आते हैं। Rainfall is also very poor. This region has a typical desert climate and it is a hot and dry. तो ये hot and dry है, and देखिए जो केरला का टेम्परेचर है वो hot and wet climate है, ठीक है। In contrast to western region of India, eastern region receive rain of most of the year. तो देखिए ये तो आप जानते हैं, देखिए in comparison to western, मान लीजिए देखिए इंडिया जो है आप इस टाइप से ये देखते हैं, देखिए इस टाइप से, तो ये जो देखिए ये वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन आर गेटिंग टू मच रेनफॉल, ठीक है ना। ईस्टर्न गेटिंग जो आपके असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, ठीक है ना, ये सारी जो स्टेट्स है दे आर गेटिंग द हैवी रेनफॉल, ठीक है ना। इसीलिए जो चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय वगैरह जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट रिसीविंग द रेनफॉल, they are situated here, okay, not in this way. So in comparison to eastern and western, we have to see that western are getting the low rainfall but eastern are getting the heavy rainfalls most of the year. Therefore the climate of eastern region is wet. इसलिए जो eastern region के जो climates होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, wet होते हैं, but western region वाले कैसे होते हैं, dry होते हैं, dry and hot होते हैं, ठीक। So climate and adaptations with the animals, okay, we will see in the next our online class, okay, thank you.